Very good morning, dear students. How are you all? I hope you are fine. Dear students, before going to pay attention towards today's lesson, let's have some discussion about the great qualities of human beings. What are those great qualities that make a human being a great human being? Those qualities are truthfulness, sincerity, honesty, integrity, hard work, loyalty, and apart from these, there are also the qualities of heart. They are kindness, pity, compassion, sympathy, empathy, and so on, which make a human being loved by all and even by the Almighty God. So, these qualities make a human being a noble human being. ये जो क्वालिटीज़ है ये इंसान को बहुत बड़ा इंसान बना देती है, उसको बहुत महान बना देती है। लेकिन इनमें जब दिल की जो क्वालिटीज़ होती है वो क्वालिटीज़ इंसान को प्यारा बना देती है। तो वो जो क्वालिटीज़ है वो है काइंडनेस, दयालुपन, सहानुभूति, परानुभूति, दूसरों के लिए प्यार, सदिच्छा। तो ये जो क्वालिटीज़ है ये इंसान को महान बनाती है और लोगों में और ईश्वर में भी उस व्यक्ति के प्रति प्रेम भावना पैदा करती है। और ये लेसन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन जो है इट्स नेम इज द हैप्पी प्रिंस। In this lesson, dear students, we are going to pay attention to the happy prince who has these wonderful qualities of heart. He was very great, he was very kind, and he felt pity and compassion. He felt sympathy, even empathy for the poor people and the sufferers. So what he does for that, we will see this in this lesson today. And today's lesson is written by the great author Oscar Wilde. So he was short lived, just for 46 years he lived on this earth. He was an Irish poet, a great playwright, he was a great dramatist. After writing in different forms, he became one of the most popular playwrights in London in early 1890s. You know, dear friends, he is one of the immortal figures in the history of English literature, and we are very fortunate to learn his lesson today. Before going to pay attention towards the lesson, let's have some information about the difficult words that you are going to see in this lesson. Sapphire, blue diamonds or precious stones. Swallow, swallow is a tiny bird. Put up, it means make a stay for the night. Here it means so. Alighted, that is flew down, came down. Curious, strange, विचित्र. Shelter, आश्रय. ड्रेंच्ड, पूरा गीला हो जाना. मिजरी, दुख. सैडनेस, कोर्स, रफ. सिम्स्ट्रेस, ए लेडी टेलर, एक महिला जो दर्जी होती है. पेडेस्टल, रेज्ड प्लेटफॉर्म. So pay attention to the summary of the lesson which I have explained here you in details. Who was the happy prince? Once there lived a prince in a town. He was called the happy prince because he was always happy all his life. He never knew what sadness was. उसको ये पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है. He had never experienced sadness. After his death, his statue was erected on a tall pedestal in the middle of the town. So when he died, his statue was erected, his statue was put on the pedestal. बीच चौराहे पर शहर के उसका स्टैचू जो है वो बनाया गया. The statue was covered with gold and two precious sapphire stones for his eyes. A ruby stone had been fitted into the handle of his sword. His statue was covered with gold. And apart from that, there were two sapphires. Sapphires, that is the blue precious diamonds, which were there for his eyes. And in his sword hilt,
तलवार पकड़ने की जो मूठ होती है वहां पर देयर वॉज द रूबी, लाल रंग का जो हीरा है वहां पर लगाया गया था। तो कैसी होती है सफायर वाली आंखें? लुक एट दिस टू ब्यूटिफुल आईज, हियर द आईज आर ब्लू एंड फॉर his eyes were blue, he had the sapphires which were fixed in his statue। और उसका जो स्टैचू था, उस स्टैचू में उसकी जो मूर्ति बनाई गई थी, उस बड़े मूर्ति में आंखों की जगह सफायर्स फिक्स कर दिए थे जो बहुत ही प्रेशियस डायमंड होते। लुक एट दिस रूबी, यू कैन सी दिस रूबी इज सो वेरी वेरी प्रेशियस एंड सच रूबी वॉज फिक्स्ड इन हिज स्वर्ड हिल्ट। उसकी जो तलवार पकड़ने की जो मूठ है वहां पर ये रूबी भी फिक्स कर दिया गया था। फ्रॉम देयर ही कुड सी द होल सिटी एंड रियलाइज्ड द पीपल लिव्ड इन ए लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी, मिजरी दैट इज सैडनेस। वहां जहां उसका जो रेस्ड प्लेटफॉर्म था, फ्रॉम दैट प्लेस ही वॉज एबल टू सी, ही वॉज एबल टू लुक एट द एंटायर सिटी एंड ही केम टू नो द पीपल आर वेरी वेरी पुअर। लोग बहुत गरीबी में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं। दिस साइट मेड द प्रिंस वेरी सैड, ही जस्ट क्राइड एंड क्राइड सीइंग द ट्रबल्स ऑफ हिज पीपल। और दिन रात वो बेचारा रोता था, कुछ भी कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके जो पैर है वो पेडिस्टल पर फिक्स थे। तो he was not able to see the sufferings of the people। You can see the statue, the wonderful statue of the happy prince here। You can see the gold leaves had covered, the gilding of the gold had covered the statue of the happy prince। पूरा जो उसका कवरिंग है वो सोने से बनाया गया था। एंड यू कैन सी for eyes there are 2 sapphires, and apart from that you can see here there are the rubies in his sword hilt। He was looking very very handsome। Who was the little swallow? One day little swallow was flying through the city। He was left behind on the way to Egypt where his friends had already reached। एक छोटा सा पंछी swallow जो अपने फ्लॉक के पीछे रह गया था, उसका जो फ्लॉक है वो आगे चला गया था इजिप्ट में। ही वॉज ऑन माइग्रेशन बट समहाउ ही लेफ्ट बिहाइंड एंड ही हैड कम टू दैट सिटी। ऑन द वे ही टूक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और रात में उसने अपना जो आशियाना है, जो आश्रय कहाँ पर ढूंढा? अंडर द फीट ऑफ द स्टैचू। While putting his head under his wing to sleep, there fell a few drops of water on him, so he began to go somewhere else। So when he put his head inside his wing, at that time what happened? Some drops of water fell on him। उसको लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर आसमान में एक भी बादल नहीं थे, तो वो वहां से उड़कर दूसरी जगह जाने लगा। But then he realized that the statue was weeping। Then when he looked up, there was the statue who was weeping, who was crying। The tears of the statue were falling down। The statue of happy prince told him the reason of his sadness। और वो जो राजपुत्र था उसको स्वालो ने उसके दुख का कारण पूछा। So look at this, this is the beautiful little swallow। What was the princess request to the swallow? क्या राजपुत्र की क्या मनोकामना थी, क्या इच्छा थी, क्या उसकी दरखास्त थी जो उसने swallow को बताई? The helpless prince requested the bird to help it by becoming his messenger to help out a poor seamstress whose son was extremely sick and she was distressed। So the Prince requested the swallow, 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 little swallow, please do me a favor and help out the poor seamstress। जो एक बहुत ही गरीब महिला थी, महिला दर्जी थी, उसका बेटा जो है बीमार पड़ा था और उसके बीमारी के लिए उसके पास उसको पैसा भी नहीं था कि उसकी सेवा कर सके, उसको इलाज दे सके।
एंड शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, बहुत ही दुखी थी वो, क्योंकि पैसे की बहुत कमी थी, बहुत गरीब थी वो. As it was extreme cold there, the swallow refused to help him. And it was extreme cold, and you know how extreme cold stops people from doing the work. तो आप जानते हैं कि बहुत कड़ी ठंड में किस तरीके से काम करना मुश्किल हो जाता है. तो स्वॉलो ने शुरुआत में प्रिंस को मना कर दिया, बट लेटर ही एग्रीड एंड प्लग द रूबी स्टोन out of the sword hilt, and finding the woman's house, he hopped in and laid the ruby beside the woman who was sleeping. लेकिन उसके बाद में सॉलो के मन में प्रिंस के लिए बहुत ही दुख निर्माण हुआ कि उसको हेल्प कर देनी चाहिए. तो फिर उसने सहानुभूति के प्रति वो जो राजपुत्र है उसकी इच्छा मान ली, और उसकी जो रूबी है, ही प्लक्ड इट फ्रॉम द स्वर्ड हिल्ट, और वो रूबी उसने किसको दी? टू द सीमस्ट्रेस. फर्दर ही फैंड हर सिक बॉय विथ हिज विंग्स, हु क्विकली सैंक इन टू नाइस स्लीप, एंड he kept the ruby beside the seamstress who was sleeping. जो महिला दर्जी है बेचारी जहाँ पर सोई थी, उसके बाजू में उसने वो रूबी डाल दिया, वहाँ पर रख दिया. और उसका बेटा जो बीमार चल रहा था, जिसको तेज बुखार था, उसके ऊपर उसने अपने पंखों से उसको हवा दिलाई, और तुरंत उसको बहुत अच्छा महसूस होने लगा. एंड ही सैंक इन टू द डिलीशियस स्लीप, डिलीशियस स्लम्बर, और उसको बहुत बढ़िया से नींद आ गई. So you can see in the picture, the ruby is kept here, and the little swallow, he fanned the sick child of the seamstress, and then he went away. The swallow helped the poor seamstress. Why did Prince request the swallow to stay for one more night? ये काम होने के बाद वो उस शहर से इजिप्ट में जाना चाह रहा था कि जहाँ पर उसके दोस्त ऑलरेडी जा चुके थे. लेकिन राजपुत्र ने उसको क्यों रोक दिया वहां पर? द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द स्वैलो वेंट टू से गुड बाय टू द हैप्पी प्रिंस, ही रिक्वेस्टेड हिम वंस अगेन टू स्टे बैक फॉर वन मोर डे टू हेल्प आउट ए यंग बट पुअर प्लेराइट हु वॉज एक्सट्रीमली हंग्री एंड पेनफुल इन एक्सट्रीम कोल्ड. The happy prince was able to see from that tall pedestal that the people were suffering from misery, the people were suffering from poverty. लोग बहुत दुख में जी रहे हैं, और ये सब कुछ उनका दुख वो जो पेडेस्टल था, उस पेडेस्टल की ऊंचाई से प्रिंस को बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा था. और उसने देखा कि देयर वॉज ए यंग प्लेराइट, एक युवा ड्रामेटिस्ट था, नाटककार था, और बेचारे के पास पैसे की कमी थी, खाने के लिए भी उसको पैसा नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, और वो बहुत ही दुखी था. तो फिर उसने स्वैलो को रिक्वेस्ट किया, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन मोर नाइट? तो फिर Swallow's heart melted and he was ready to do the work for the prince. So, hearing the pitiable request of the happy prince, the swallow's heart melted and he agreed to stay for one more day. The swallow plucked the sapphire. That night, the swallow plucked a sapphire stone from one of the beautiful eyes of the statue and delivered it to that young playwright. तो उसने जो यंग प्लेराइट था उसको मदद करने के लिए स्टैचू ने उसको कहा था कि उसकी जो एक आंख का सफायर है, जो नीला मोती है, वहां से निकाल ले. सो ही प्लक्ड इट एंड ही डिलीवर्ड इट, ही गेव इट टू द यंग प्लेराइट. So very happy he became that he forgot about his pain and suffering of his poverty and became delightful. And he became so very happy
The playwright became so very happy when he got that precious stone, when he got that precious sapphire, that he forgot about his pain, he forgot about his misery. So this is how the happy prince and the swallow both were helping out the poor and needy people who were suffering in the agonies. Why did the swallow stay for the third night too? उसको तो जाने के लिए बहुत जल्दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्वालो क्यों रुका तीसरे रात में भी? Having performed the great work of charity, the swallow went to the happy prince to bid him goodbye. Now the swallow had become very happy. उसने बहुत अच्छा काम करने के बाद बहुत खुश हो गया था वो. देखो, जब हम अच्छा काम करते हैं तो एक मन में बहुत खुशी महसूस होती है. किसी का दुख बांटने से उसका दुख आधा हो जाता है, और किसी के साथ खुशियां बांटने से खुशियां दुगनी हो जाती है. कितना बढ़िया गणित है ये जिंदगी का. बट द स्टैचू रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विथ हिम ऑन द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नाइट. तीसरी रात भी स्टैचू ने, हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो को रिक्वेस्ट की, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन मोर नाइट? The statue requested him to pull out the second sapphire stone from his eye to help out a poor match girl whose matches fell into the gutter and spoilt. So the statue had seen from that height that a poor match girl, एक छोटी सी बच्ची जिसके पास एक मैच बॉक्स थी, मैचेस की जो बॉक्स थी, वो बॉक्स गटर में गिर गई और पूरे की पूरे मैचेस क्या बॉक्स वो खराब हो गया, और वो अभी रो रही थी, गरीब थी बेचारी. तो क्या हुआ देखो. लिसनिंग टू द आर्डेंट रिक्वेस्ट ऑफ द स्टैचू, द स्वैलोज हार्ट मेल्टेड एंड द स्वैलो बिकेम वेरी सैड एंड ही फेल्ट pity for the happy princess request, and he also felt the pity for that poor match girl. He agreed to stay for one more night, but he refused to pluck sapphire from his eyes, for he could become completely blind then. स्वैलो भी बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने दुख भरी आंखों से हैप्पी प्रिंस को रिक्वेस्ट की, स्टैचू को रिक्वेस्ट की कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी जो सफ़ायर है वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपकी अगर सफ़ायर निकाल लूँगा तो आप दोनों आंखों से अंधे हो जाएंगे, फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा. However, plucking the sapphire from the statue's eye, he helped out the poor little match girl. लेकिन हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो को समझाया कि उसके सफ़ायर से भी बड़ा काम ये है कि उस बेचारी गरीब लड़की की मदद करना. तो फिर what happened? The swallow plucked the sapphire, the second sapphire also, and he gave it to the poor little match girl and helped her. Why did swallow promise to stay forever with the statue? अब प्रश्न है यहाँ पर कि स्वैलो ने क्यों प्रॉमिस किया राजा को, राजपुत्र को, कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, क्योंकि उसको तो जाना था. वेयर ही हैड वांटेड टू गो, ही हैड वांटेड टू गो टू इजिप्ट. तो उसके बावजूद भी उसने ऐसा क्यों कहा? हैविंग डन द ग्रेट वर्क ऑफ चैरिटी, द स्वैलो बिकेम वेरी हैप्पी एंड प्रॉमिस टू स्टे विद द स्टैचू फॉर एवर. As the statue had become fully blind, the swallow narrated him the pathetic conditions of the people. जो हैप्पी प्रिंस है उसकी अवस्था इतनी दयनीय हो गई, इतनी बुरी हो गई कि वो अभी पूरा अंध हो गया था. उसकी आंखें जो है अभी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों की सफ़ायर्स जो है स्वैलो ने निकाल ली थी और गरीबों में बांट दी थी. उसका जो रूबी है, रूबी भी उसने गरीबों में बांट दिया था. अब ऐसी अवस्था में स्वैलो को हैप्पी प्रिंस को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं लगा, और उसी कारण की वजह से द स्वैलो प्रॉमिस्ड टू स्टे विद द स्टैचू फॉर एवर. और स्टैचू को अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
तो फिर स्वैलो जो है वो पूरी सिटी में क्या क्या हो रहा था, लोग कितने गरीब हैं, उनकी गरीबों की जो दास्ताएं हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो किसके साथ शेयर कर रहा था, विद द स्टैचू. The rich were making merry while the poor were suffering. The rich people were enjoying like anything, but the poor were suffering. गरीब लोग जो है वो गरीब अवस्था में, दुखी अवस्था में जीने के लिए मजबूर थे, और पैसे वाले लोग, अमीर लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनको गरीबों के लिए कुछ भी करने की इच्छा थी ही नहीं. हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो ट्राई टू रिमूव द सफरिंग्स ऑफ पुअर. किस तरीके से अभी हैप्पी प्रिंस और स्वालो लोगों की परेशानियां दुख दर्द दूर करने के लिए प्रयास कर रहे थे. As the happy prince did not have any more precious stones, he ordered the bird to remove the gold foils that had covered his body and distribute among the living who needed money for survival. Now the happy prince, who had no more precious stones, requested the swallow to remove the gold leaf, the gilding of gold from his statue and give them to the poor and needy people. तो स्टैचू ने, अभी उसके पास कुछ भी हीरे जवाहरात वगैरह नहीं थी, लेकिन जो गोल्ड का कवरिंग था वो निकाल कर गरीबों में बांटने के लिए स्वैलो को रिक्वेस्ट की. Plucking the fine gold covering leaf by leaf, the swallow helped the beggars at the gate, poor starving children, two boys under a bridge, striving hard to keep out cold, and so on. और स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस की रिक्वेस्ट को मानते हुए बहुत सारे गरीबों की मदद की. उसमें गरीब भिखारी भी थे जो गेट पर थे, उनको खाने के लिए तक पैसे नहीं थे, और जो बच्चे थे वो ठंड से सिकुड़ रहे थे, ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वैसे भी बच्चों को मदद की, उनको खाने के लिए पैसे दिए, उनको खाने के लिए गोल्ड दिया ताकि वो उससे पैसा प्राप्त कर सके. और कई सारे लोगों की मदद स्टैचू ने भी की, और स्टैचू के साथ स्वैलो ने की. डेथ ऑफ द स्वैलो. ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस lost its covering of gold and became dull and grey. और जो स्टैचू जितना सुंदर दिख रहा था उसका तो अभी पूरा का पूरा कवरिंग भी चला गया. हाउ डिड इट लुक नाउ? इट लुक्ड वेरी डल एंड ग्रे. अभी उसका जो ग्लो था वो पूरा का पूरा चला गया था. ऑन द अदर हैंड द पुअर बिकेम जॉयस एज दे गॉट ब्रेड टू इट. लेकिन जो गरीब लोग थे उनको खाने के लिए निवाला मिल गया तो वो बहुत खुश थे. The swallow bird was now unable to withstand the cold weather and realized that the death was approaching. The death was coming near. ठंड इतनी बढ़ने लगी थी, अब स्वैलो को पता हो चुका था कि उसकी जो मृत्यु है वो पास आ गई है. He informed the statue that it had to leave, and the statue, who loved the bird, asked to kiss him. और स्वैलो अभी गुड बाय कहने के लिए हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास गया. एंड द स्टैचू थॉट द स्वैलो वॉज नाउ ऑन हिज वे, ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट. तो स्टैचू को ऐसा लगा कि अभी स्वैलो कहाँ जा रहा है, इजिप्ट में जा रहा है. वो खुश भी हुआ क्योंकि स्वैलो ने उसकी बहुत मदद की थी, गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए. The statue became happy to hear him say goodbye after doing the great job of charity. However, the swallow told him that it was his final journey to death. लेकिन स्वैलो ने उसको कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, अभी उसको मृत्यु की राह पर चलना है. तो उसने कहा कि उसकी मृत्यु अभी करीब दिख रही है. Why did the statue's heart break into pieces? The bird died and fell at the statue's feet. At that instant, a strange sound came out of the statue, as its heart of lead had broken into 2 pieces. और ऐसा जब स्वैलो ने कहा कि अभी मृत्यु निश्चित है, तो ऐसा कहते ही स्वैलो ने अपनी आखिरी सांस ली. एंड his dead body fell at the feet of the statue.
और जब उसकी मृत्यु हुई उसी पल को, उसी समय को स्टैचू के अंदर भी एक विचित्र आवाज आ गई। और वो आवाज क्या थी? स्टैचू का जो लीड का बनाया हुआ जो दिल था उसके मूर्ति में, उसके स्टैचू में, तो उसके भी जोर से आवाज होकर टुकड़े हो गए थे दो। When it was noticed by the mayor of the town and his councillors, they ordered to melt the statue in a furnace and throw away the dead bird. और जब उन्होंने देखा कि स्टैचू जो है उसका ग्लो, उसकी जो सुंदरता है वो खो चुका है, क्योंकि अभी उसका फाइन गोल्ड जो कवरिंग वो भी चला गया था, और वो उसका जो लीड का जो हार्ट है वो भी टूट गया था, बिखर गया था, और उसके ठीक पैरों के पास में वहाँ पर स्वैलो की जो डेड बॉडी वो भी पड़ी हुई थी। तो वो देखने के बाद वहाँ जो शहर का जो मेयर है और उसके जो काउंसिलर्स है उन्होंने तुरंत ऑर्डर दी कि वो जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है उसको पिघलाया जाए ताकि उसको रिसाइकल कर सके। और कहाँ पर पिघलाएंगे? इन द फर्नेस। Hence, the statue was melted into the furnace. However, its heart did not melt and was thrown in the garbage where the dead body of the swallow was already lying. swallow की जो मूर्ति है वो पूरी तरह पिघल गई, लेकिन उसका जो लीड का हार्ट है वो पिघला नहीं। तो उनके लिए कुछ भी काम का नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया? उसको फेंक दिया कूड़े में, कचरे में फेंक दिया, कि जहां पर ऑलरेडी स्वैलो की जो डेड बॉडी है वो फेंक दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी स्वैलो और स्टैचू दोनों फिर से एक साथ आ गए थे। ये था कुदरत का करिश्मा। सो यू कैन सी हाउ द once beautiful statue had become bare and dull, and you can also see the dead body of the swallow lying at the feet of the happy prince. The swallow died and the prince's heart broke into pieces. What were the two precious things ordered by God? और वहां पर भगवान ने ऑर्डर दी। कौन सी ऑर्डर दी? He wanted the two precious things, जो दो बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं उस शहर की। उन्होंने अपने एंजल को कहा कि जाओ और दो मूल्यवान चीजें उस शहर से मेरे लिए लेकर आओ। God ordered one of his angels to bring him the most precious thing from the city. God's angels took both the dead body of the swallow and the broken heart to him because they were truly the most precious things in the city. तो वो क्या लेकर गए? भगवान के जो दूत थे वो क्या लेकर गए? They took along with them the dead body of the swallow and the broken heart of the happy prince. और ये जो दोनों चीजें हैं वो भगवान के पास, ईश्वर के पास, गॉड के पास लेकर गए और उन्होंने कहा कि ये है सबसे मूल्यवान चीजें। Do you think that they were really precious? Absolutely, they were the most precious things in the city. So in this way we have finished the lesson and I hope you have understood it. Now we come to the final phase of our presentation, and that is the question answer session. Answer these questions. Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? क्या असलियत में वो हैप्पी था? Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? वो जो महिला दर्जी है उसको मदद करने के लिए हैप्पी प्रिंस ने रूबी क्यों भेजा? What does the swallow do in the seamstress house? और वो वहाँ पर क्या करता है seamstress के घर में? Third question, for whom does the prince send the sapphires? Why? sapphires किसके लिए भेजता है वो और क्यों? What does the swallow see when it flies over the city? क्या क्या देखता है swallow? Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? swallow क्यों मना करता है इजिप्ट में जाने के लिए, और वो क्यों बोलता है कि वो प्रिंस के साथ ही रहेगा? सो
These are the very easy questions now. I hope you have fully understood the lesson. Thank you very much, and